ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द डायमेंशंस दैट यू मेंशनिंग और जो सारे पॉइंट्स आप लिख रहे हो वो बहुत जेनेरिक लगने लगे। एक टॉपर का जो आंसर होता है वो ऐसा नहीं होता है। दे हैव दैट क्लियर स्ट्रक्चर, वो एकदम वैल्यू एडिशन जो होता है ना वो इतना एक्सीलेंट होता है दैट इवन एन एग्जामिनर हु इज एक्चुअली चेकिंग 200 कॉपीज दे स्टॉप एंड सी दिस इज व्हाट एक्स फैक्टर है। तो जब मैंने कहा कि एक्स फैक्टर में क्या होता है, कोड्स होते हैं, डेटाज होता है, डायग्राम होता है, डेफिनेशन होता है, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर, यू कैन सी दैट ये इंट्रोडक्शन है, ये कोड्स आपको लिखने हैं, ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये एक डायमेंशन हो गई इस माइक्रो थीम की, मेजर चैलेंजेस क्या हैं, एंड देन सोसाइटल, एंड देन कम्स द सिटीजन चार्ट। किस तरीके से सारा का सारा कंटेंट एक डॉक्यूमेंट के अंदर इंटीग्रेटेड है। 300 प्लस माइक्रो थीम्स आर इंटीग्रेटेड इन अ डॉक्यूमेंट दैट हैज डायग्राम्स, दैट हैज एग्जांपल्स, दैट हैज कोड्स, दैट हैज डेटा सेट्स, दैट हैज करंट अफेयर embedded in the entire structure. Hello everyone. So we released the updated X Factor notes for this year. Why X Factor? If you want to take your mains clarity and standard and to a level where you need to reach a 450 plus benchmark, which is the normal now, you need to have X Factor in your preparation, in your content strategy and your structures, right? That 20 प्लस मार्क्स जो एक रैंकर को डिफरेंशिएट करते हैं, इंसुलेट करते हैं, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत डेप्थ, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन से, कंटेंट से, आंसर से आता है। क्योंकि व्हेन यू राइट अ 20 क्वेश्चंस इन वन गो, अ लॉट ऑफ यू विल सी, और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि होता क्या है कि यू स्टार्ट राइटिंग एंड यू विल सी that all the questions and all the dimensions that you're mentioning और जो सारे points आप लिख रहे हो वो बहुत generic लगने लगते हैं। एक टॉपर का जो आंसर होता है वो ऐसा नहीं होता है। They have that clear structure, वो एकदम value addition जो होता है ना वो इतना excellent होता है that even an examiner who's actually checking 200 copies, they stop and see. This is what X factor is, alright? It's basically for somebody who's very serious, okay? Last year only we had like 2.83 lakh downloads of X Factor itself, okay? And a lot of people who have written mains have attributed singularly कि वो क्यों लिख पाए and why they reached that point is because of X Factors, alright? Singularly that has happened and this is the credibility of X Factors. What it means, what it actually is I'll show you that. Exist क्यों करते हैं? मतलब why there is no other notes like X Factor, ठीक है? Because you have to reverse engineer everything. This preparation, this strategy has to be reverse engineered and we have micro themes for that. Micro themes are those topics जो कि बहुत ही ज़्यादा repeat होते हैं. For example, constitutional morality in polity is a micro theme, right? So you need to have like crisp, very in-depth, example-rich, quotes-rich notes on constitutional morality कि आप उसकी हर dimension जहाँ से questions पूछे जा रहे हैं आप आंसर लिख सको, ठीक है? वहाँ पे जाके generic points लिख के और ये सोचना that why did not I clear mains is not going to cut it out, okay? इसके बाद what I'm going to show you and how you follow it, इसके बाद you would not have that problem because you will have a structure that needs there is no loophole in that, okay? एकदम dense. What I mean by dense content here is that एक माइक्रो थीम है, एक टॉपिक है, उसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं। हर मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर आपके पास कम से कम 12 पॉइंट्स होने चाहिए दैट कवर्स ऑल द डेप्थ, इन डेप्थ वो करना चाहिए विद फैक्ट्स, डायग्राम्स, डेटा, कोट्स, ठीक है, द कंक्लूजन, द स्ट्रक्चर, द फ्रेमवर्क, एवरीथिंग इन वन प्लेस। नाउ आई विल एक्चुअली स्टार्ट गोइंग टू शो यू कि how a micro theme linked document looks like, how X Factor updated looks like, okay? What you see here is the revised X Factor notes. अब updated version में क्या नया है, that is very important. इस बार हमने क्या किया है, first of all, ये तो उसका content page है. Everything is mapped to what? The syllabus, but micro themes. Micro themes again, जहाँ से questions बन रहे हैं. Let's say this is chapter 1, issues related to planning, mobilization of resources, growth, development, employment. अब यहाँ पे आपको दिखेंगे previous year questions. These are the previous year questions. 2018, 20 और यहाँ से repeated questions आ रहे हैं. 2025 में यहाँ से question आया था. अब micro theme क्या है इसकी? इसकी micro theme है एक national income accounting because ये repeat हुआ है. So ये तो एक वेग टॉपिक सिलेबस दे दिया because UPSC syllabus is like never ending, so you always have to work through micro themes when you're creating your content or preparing. The micro theme, let's say, is national income accounting, okay? अब यहाँ पे what it is,
What is the significance? That is like 8 point. 8 points सिर्फ इसके लिए दिए गए हैं, ठीक है. And जो सब headings भी दी हुई हैं, they are not like generic sub headings. They catch your attention. All right. Sectoral analysis. Keywords की बात की जाती है ना preparation में, that you have to have like really subject specific connected keywords. Keywords that you will find here, यहाँ पे, in very short. So this goes beyond your scattered NCRTs. Scattered NCRTs, then you have your standard resources, then you will have one resource for courts, then you will have Supreme Court judgments, एक में data अलग होगा. Everything is all over the place. This X factor note basically has everything under it. All these dimensions, all these requirements of a good answer आपको एक जगह मिल रहा है, but in a very structured manner, right? And what does it take to write a good answer? 10 marker, 15 marker, जो माइक्रो थीम की डेप्थ है वो कैसे चाहिए, वो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में दिया हुआ है. सो लाइक दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस? डेटा एक्यूरेसी, ब्लैक मनी, एनवायरमेंटल ब्लाइंड स्पॉट. डू यू सी दिस कीवर्ड? नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर. सो यू नीड टू, अगर आपको 450 प्लस वाला एम चाहिए तो आप इससे नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट है ही नहीं. इफ यू प्रीलिम्स क्लियर करना मुश्किल होता है एंड नाउ दैट यू रीच मेंस फेज और उसके बाद भी ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो अंडरस्टैंड दैट यू नो योर आंसर्स आर टू जेनेरिक. मे बी इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट प्रॉब्लम, बट इट्स अबाउट दैट एक्स फैक्टर जो कि एक टॉपर की कॉपी में मिलेगा आपको. मेथड्स, ठीक है. नाउ दिस इज द नेक्स्ट थीम अंडर दिस, जीडीपी. नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर यू हैव जीडीपी. व्हाट इज जीडीपी? व्हाट आर द चेंजेस दैट आर, अब ये करंट अफेयर लिंक्ड है, ठीक है. तो अब जीडीपी की बहुत डेप्थ तो आपने बेसिक चीजों से पढ़ ली होगी, बट अभी आंसर में वो आपसे वो पूछेगा ही नहीं. दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एनालिटिकल डिमेंशन जो कि यहां से मिलेगी. चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन जीडीपी कैलकुलेशन, ये हैं चेंजेस. क्या रीजंस हैं उन चेंजेस के, मेजर क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, ठीक है, वो सारी चीजें. वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, बियॉन्ड जीडीपी क्या है, और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, देन ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं. सो लाइक 360 डिग्री कवर करेगा वो कंटेंट, ठीक है. एंड मल्टीपल पॉइंट्स बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एवरी पॉइंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर. दे आर नॉट जेनेरिक, दे आर कनेक्टेड बट इन अ वे दैट हर पॉइंट से एक अलग वैल्यू और एक अलग डायमेंशन निकल के आ रही है. सो दिस इज योर अप्रोच. पोटेंशियल जीडीपी, जीडीपी है तो पोटेंशियल जीडीपी क्या हो सकता है? अब पोटेंशियल जीडीपी इज इन न्यूज, ठीक है. दिस इज ऑल करंट अफेयर लिंक्ड. इकोनॉमी इज अ सब्जेक्ट विच इज वेरी डायनामिक. सेविंग्स रेट, अभी किस माइक्रो, ये सब दीज आर द माइक्रो थीम्स. किस पे मैप्ड है? अब जैसे अब इसमें व्हाट वी हैव डन विद द अपडेटेड वर्जन इज दैट एम्प्लॉयमेंट का डेटा करंट में क्या है, यू नीड दैट. मल्टीपल डेटा पॉइंट्स आर देयर. इफ यू डू नॉट हैव दीज मल्टीपल डेटा पॉइंट्स revised and written in your answer, forget scoring in subjects like that. Okay, नहीं आएंगे आपके GS3 में मार्क्स, आप नहीं कर पाओगे. अब ठीक है, अब यहाँ पे किस थीम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन इन द न्यूज, एवरीथिंग इज मैप्ड अकॉर्डिंगली. कैसे कंप्यूट होता है, इश्यूज करंट मेथोलॉजी के साथ क्या प्रॉब्लम है, कॉजेस क्या है. अब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिख दिया वीक मैन्युफैक्चरिंग. Prove it. How? What? Manufacturing contributes only 16 to 18% of GDP. तो जब मैं बोली हूँ fact rich होना चाहिए, content linked होना चाहिए, it should be backed by data. This is how it is backed by data. Informal employment. There is too much informal employment. What is too much? Generic. Over 90%. ठीक है. Female workforce deficit. Impact क्या है? अब कंपैरिजन, क्योंकि इंटरलिंकेज इस टॉपिक में बहुत होता है, तो हाउ डू वी एक्चुअली इन एक्स फैक्टर, हाउ डू वी डू दैट? जॉबलेस ग्रोथ के साथ उसको कनेक्ट किया है. इंटरलिंकेज ऑफ द डायमेंशंस, बिकॉज GS3 के क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं. व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, व्हाट इज हैपनिंग नाउ करंटली. ऑल द डेटा दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड हियर इज लिंक्ड टू द फैक्ट दैट कि लास्ट ईयर में करंट डेटा से हमें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है. एंड हाउ डू यू लिंक इट टू दीज डायमेंशंस. डेटा को निकाला है, देन उसको इसके साथ लिंक किया है, एंड प्लस एवरी सिंगल डेटा पॉइंट दैट वी हैव यूज्ड इन एक्स फैक्टर इज मैप्ड टू द गवर्नमेंट सोर्स से लिया. एंड यू कैन क्रॉस चेक, पिक अप एनी काइंड ऑफ डेटा, डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट, pick up any kind of data, cross check for yourself before you actually refer it. So this is how clear and targeted it is.
एग्जाम ओरिएंटेड कैसे, लेबर लॉ रिफॉर्म्स, ठीक है, तो लेबर लॉ के बारे में बहुत बात हो रही है, लेबर कोड्स के बारे में बात हो रही है, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात हो रही है, बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस आर गोइंग अराउंड इट. So this is a micro theme that we have created and covered, and obviously on what basis, what is happening and what has been asked in the past, right? And data. Okay. तो ये उस इंसान के लिए है जिसको, जो कि बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है. आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली हैं, अब आपको कंटेंट चाहिए, 450 प्लस मार्क का वो गेम है, राइट? यू वांट टू क्रॉस दैट माइलस्टोन इन वन गो. दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम. ओके, अब जैसे डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम PIB, राइट? विमेन सेंट्रिक रिफॉर्म्स अंडर द लेबर कोड्स, बिकॉज आप जब आंसर लिखोगे विमेन से रिलेटेड और लेबर कोड से, यू नीड टू हैव सच माइंड मैप्स इन योर आंसर, ठीक है. यू हैव टू प्रोड्यूस दिस प्रोबेबली इन अ फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. See here also, you see this diagram, इस तरीके से आपको हर टॉपिक पे मिल जाएगा. डायमेंशंस, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है, काफी न्यूज में है डायमेंशंस. ऑलराइट, कोर आइडिया. सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट. अब मैंने आपको इकोनॉमी का दिखाया, आई ऑल्सो शो यू अदर्स. तो जैसे लेट्स से एथिक्स देखते हैं, ठीक है. दिस इज द एथिक्स, दिस इज द सिलेबस. ऑब्वियसली इसको देख के आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि क्या माइक्रो थीम्स हैं, बट वी हैव डिवाइडेड एवरीथिंग अंडर माइक्रो थीम्स. ओके, अब एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस से वैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया यहाँ पे. पहले यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस एंड देन स्टार्टिंग विद द कंटेंट. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, करंट अफेयर को ऐसे लिंक किया है स्टैटिक के साथ दैट यू गेट एवरीथिंग अंडर वन डॉक्यूमेंट. ऑलराइट, अब जैसे इंट्रोडक्शन टू एथिक्स है, तो यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं है, बट पिन पॉइंटेड व्हाट नीड्स टू बी रिटन इन एन आंसर. You see here, according to philosopher McKinsey, okay, this is what you need to write to fetch marks in ethics. You need to quote philosophers, okay, you need to have good quotes, good connections, good data points. I'll show you how we have done it in the ethics. Determinants of ethics क्या है? Internal determinants, subjective side, inner voice. Example, Gandhiji ended the non-cooperation movement after Chauri Chaura. Conscience, the inner voice of a moral compass that provides an immediate sense of right and wrong. Connected here with example. Intent. Even a good act can be unethical if the intent is malicious. Example, helping a victim to later rob them. These are the kind of examples, ठीक है. Moral courage, example of real person. सत्येंद्र दुबे का example दिया है यहाँ पे. All connected, all the content of ethics is connected through real life examples, and without that you would not get marks. Dimensions को इस तरीके से डिवाइड किया है फॉर द डायग्राम. ये मेटा एथिक्स का टॉपिक है, ठीक है. सी, दिस इज नॉर्मेटिव एथिक्स. यू कैन सी हियर हाउ द डायग्राम्स हैव बीन मेड सो दैट you have to reproduce the exact same thing in the exam. Okay, this is how we've made it. Means versus end, ठीक है. Preservation of human dignity, moral integrity, predictability and trust, procedural justice. These are the keywords again. Like depth की जो मैं बात कर रही हूँ, that you need to have serious depth in your answers. और content आपका बहुत value added लगना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा sharp answer has keywords like this. Alright. जैसे एथिक्स इन रिलीजन है, ठीक है. लेट्स सी रिलीजन्स क्या है, क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, अगेन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स. किस तरीके से जस्टिफाई करोगे तुम अपने पॉइंट को, थीसिस एंटी थीसिस क्या है, एंड सिंथेसिस क्या है, कॉमनैलिटी क्या है एथिक्स और रिलीजन के बीच में, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, कल्टिवेशन ऑफ इंटरनल वर्च्यूज एक पॉइंट है. एग्जाम्पल किसका, अरिस्टोटल्स वर्च्यू एथिक्स. नोबल एट फोल्ड पाथ, मतलब एक ही पॉइंट के अंदर देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स टू जस्टिफाई अ पॉइंट, अ डायमेंशन. एक डायमेंशन को जेनेरिक नहीं रख सकते, आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा विद प्रॉपर एग्जांपल, डेटा सेट्स, कीवर्ड्स एंड इंटरकनेक्शन. ऑलराइट. एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप. सबसे पहले कोट्स, एवरीवेयर यू विल फाइंड दीज कोट्स. हर जगह कोट्स भी एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है. यू विल हैव गुड कलेक्शन ऑफ कोट्स in this by the end of this, okay, in this one document only. Now you see this consequences in the absence of ethics. सारे dimensions, individual level पे क्या होगा, societal level पे क्या होगा, with proper examples, ठीक है. values क्या होती हैं यहाँ पे, they've mentioned. G.W. Alport, P.E. Vernon and G. Lindsay categorized. When you write that in your answer, imagine the kind of level that you're going up. And these values have been divided and keywords rich है पूरा, keyword पूरे के पूरे used है. Functions क्या होते हैं values के, ठीक है.
यू हैव 8 पॉइंट्स, फंक्शंस ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज की एक थीम है, उसके अंदर तुम्हारे पास प्रॉपरली उन्होंने 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं. सो दिस वाज लाइक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एथिक्स. लेट्स सी अनदर वन. लेट्स से गवर्नेंस. ऑलराइट, गवर्नेंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आजकल तो मुझे लगता है कि गवर्नेंस इज ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कुछ कुछ यू विल सी दैम. अब ये जो है, दिस इज द गवर्नेंस, ये इसका कंटेंट टेबल हो गया. एंड लेट्स जस्ट जल्दी से देखते हैं. दीज आर द PYQs. यहाँ पे देखो पहले ही स्टार्ट पे दे हैव गिवन व्हाट आर द डेफिनेशंस दैट यू नीड. ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन के लिए गिवन इंट्रोडक्शन. ऑल द एक्स फैक्टर नोट्स आर सच दैट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, देन एक इवोल्यूशन, दिस ऑल्सो कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन. यू कैन, when once you start answer writing, you start developing those dimensions as to how your writing framework works. अब ये यहाँ पे it has given you indicators. These are the indicators of this framework. Good governance क्या होती है? ठीक है, core principles, UNDP, everything is backed by data, everything is backed by examples. अब इश्यूज क्या है गुड गवर्नेंस के? ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो एक आंसर, जो एक कंप्लीट आंसर की डायमेंशन बन सकती है, वहीं पे तुम्हारी माइक्रो थीम एंड होती है, विथ एटलीस्ट मिनिमम 8 to 9 पॉइंट्स आपको हर थीम में मिलते हैं. अब ये मेजर स्टेप्स अभी तक हमने ये देखा. एंड नाउ व्हाट यू सी हियर, व्हाट इज दिस? इश्यूज हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के. क्या मतलब, एक डायमेंशन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके और मल्टीपल डायमेंशंस पे भी यू विल हैव कंटेंट. कोई भी चीज यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए. Here you have citizen participation and good governance, right? The building of a nation is not a government project, it is people's project. PM Narendra Modi. Democracy is not merely a form of government, it is primarily a mode of associated living. B.R. Ambedkar. Alright, ऐसे 4 examples. Margaret Mead, second ARC report. This is the kind of content curation you need if you are writing an answer or preparing notes. आपके notes में अगर इस तरीके का content और depth नहीं है, सो आप कभी भी आज के लेवल पे जो कंपटीशन, जिस तरीके से बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं, टॉपर्स के आंसर्स को मैच नहीं कर पाओगे. दैट्स दैट. यू नीड एवरी आंसर शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ. इट शुड हैव दैट एक्स फैक्टर. यू नो, एक जो एग्जामिनर है जो 200 कॉपीज चेक कर रहा है, दे नॉट गोना लुक एट योर कॉपी इफ यू डू नॉट हैव दीज वेरी यूनिक डायमेंशंस एंड पॉइंट्स रिटन इन योर आंसर. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? क्या डेफिनेशन है? ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी बहुत सिंपल लैंग्वेज में विद प्रॉपर कीवर्ड्स. OECD की डेफिनेशन और कपल ऑफ कोट्स हियर. तो जब मैंने कहा कि एक्स फैक्टर में क्या होते हैं, कोट्स होते हैं, डेटाज होता है, डायग्राम होता है, डेफिनेशन होता है, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर. यू कैन सी दैट ये इंट्रोडक्शन है, ये कोट्स आपको लिखने हैं, ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये एक डायमेंशन हो गई इस माइक्रो थीम की. मेजर चैलेंजेस क्या हैं, वो भी मल्टीपल चीजों में डिवाइडेड. एंड देन सोसाइटल, एंड देन कम्स द सिटीजन चार्टर. तो किस तरीके से इसका एक फ्लो जो है वो कितना सिस्टमैटिक है, यू कैन सी दैट इन दिस ओनली, राइट? आई विल शो यू अनदर वन. लेट्स से इंडियन पॉलिटी. लेट्स गो हियर. अब इंडियन पॉलिटी में जैसे कि लेट्स से देयर आर 300 माइक्रो थीम्स, लाइक अराउंड 288 300 माइक्रो थीम्स में पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मैप्ड है. उसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए ये 300 माइक्रो थीम्स इस तरीके से डिवाइडेड है. ये 300 माइक्रो थीम्स ही आपको करनी है टू इंश्योर दैट यू रीच अ लेवल वेयर कहीं भी और किसी भी डायमेंशन से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कम से कम 8 से 10 पॉइंट, 15 पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिख के आओ. ऑलराइट, एंड ऑल दैट मेक्स अ आंसर अ गुड आंसर. एक टॉपर का आंसर जो होता है, जो कंटेन करता है, वो इस चीज में दी हुई है. सो दिस इज द PYQ कोट्स. नाउ कोट्स में क्या है कि आजकल रैंकर्स जो हैं बहुत सारे कोट्स यूज कर रहे हैं अपने. ठीक है, कोट्स को यूज करना इज बिकॉज दे फेचिंग मार्क्स. ठीक है, और ये बहुत सारे अक्रॉस टॉपिक्स भी यूज कर सकते हो आप ऐसे एथिक्स में भी. और क्योंकि अब ये कर रहे हैं और मार्क्स मिल रहे हैं लोगों को, एंड दे आर फेचिंग एक्स्ट्रा मार्क्स बिकॉज ऑफ इट, यू हैव टू डू इट. एंड सच कोट्स आर अक्रॉस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है थीम्स में. ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे देखो, अब ये थीम है कॉन्स्टिट्यूशन. नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थीम. अब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर तो बता दिया. ठीक है, अब वहां पे प्रॉब्लम है कि कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड डॉक्यूमेंट. अब उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं फेवर में? ठीक है, ये यहाँ पे 8 पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट्स के हैं. अब आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, अगेंस्ट है, उसके क्या पॉइंट्स है, और वो भी कैसे? बैक्ड बाय डेटा. कंटेंट इज nobody holds any patent rights in fundamental ideas of the constitution is set by Ambedkar. अब आप सोचिए, अगर आपको ये आप जब लिखोगे, आर यू नॉट गोइंग टू fetch more marks than an average answer?
नो इट इज ओरिजिनल और राइट से ज्यादा जब ये लिखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। डायमेंशन को किस तरीके से देखना है, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशनल वैल्यूज पे यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, सेक्युलरिज्म सरधर संभव से आता है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल ऋग्वेद से आता है, अर्थशास्त्र बोलता है कि लिबर्टीज एंड प्रॉपर्टी राइट्स एज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द महासंघा वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रिपब्लिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ सभा एंड समिति डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को दिखाती है। इतना इन डेप्थ है। यूनिक सिंथेसिस नॉट ब्लाइंड कॉपी, ठीक है, यूनिक सिंथेसिस है। इंडियन ओरिजिन बहुत सारे प्रोविजंस ऑलरेडी हैं, उसका क्या लिख दिया आपने, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक ऑफ ओरिजिनल इंडियन ओरिजिन की क्या है, यू नीड टू राइट दैट, यू मस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे भी स्टार्टिंग विद द quote, according to Woodrow Wilson, living political constitutions must be Darwinian in structure and in practice. The notes are such, देखो कि यहाँ से शुरुआत से भी हमने देखा ना नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, तो यहाँ से ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन, देन ये तुम्हारा मेन कंटेंट विद द आइडियाज कर, ठीक है, इसमें ऐसे करंट अफेयर्स का कोई पॉइंट नहीं है, तो देयर इज नो करंट अफेयर्स इन दिस टॉपिक एज सच, बट जहाँ पे है एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, दैट हैज बीन इंक्लूडेड। तो जहां पे जो भी चीज है, तो अगर एक ही डॉक्यूमेंट में द करंट अफेयर हैज बीन इंटीग्रेटेड, तो अगर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर करंट अफेयर का कोई पॉइंट है तो वो तुमको वहीं पे मिलेगा, तुमको अलग से उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दिस इज द एंड। सो लाइक फ्रॉम ए टू जेड यू विल फाइंड दैट जो भी डायमेंशन एक आंसर के लिए चाहिए यू विल फाइंड इट हियर ओनली। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखो तो यहाँ पे पूरा ये, अब यहाँ पे ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लुइस हेनकिंस डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द फॉलोइंग 9 एलिमेंट्स। हाउ मेनी बुक्स विल यू फाइंड दिस रेफरेंस, हाउ मेनी बुक्स, दैट्स अ क्वेश्चन एक्चुअली फॉर योरसेल्फ कि आपने कितनी बुक्स में इस टाइप के रेफरेंसेस देखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये रीसेंट न्यूज है, सो अपडेटेड वर्जन्स में व्हाट यू डन दैट कि जो रीसेंट जो भी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो इकोनॉमी और पॉलिटी में जो भी रीसेंट न्यूज है, जब वो टॉपिक खत्म हो रहा है तो उसके बाद हमने उसे रीसेंट न्यूज भी उसमें अटैच किए हैं, अगर वो कनेक्टेड है या एक मल्टीपल डायमेंशन या एक एक्स्ट्रा डायमेंशन या NYQs टाइप की चीज बना रहा है, सो दैट इज ऑल्सो एडेड टू दैट। अब यहाँ पे अंबेडकर एंड ग्रोथ रोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, क्या की एलिमेंट्स है, ये है वैल्यू एडिशन, ये है यूनिक एक्स फैक्टर, ठीक है, ये आपको जनरल स्टैंडर्ड बुक्स में कभी भी नहीं मिलेगा, और अगर होगा तो बहुत ही अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होगा। सो इस चीज को स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये एक साथ हमने इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। अब जैसे रिलेटेड केसेस हैं, जुडिशियल एलैबोरेशंस आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यू नीड टू राइट केसेस, एवरीबडी नोज व्हाट केसेस, हाउ डू यू कनेक्ट इट, हाउ डू यू जस्टिफाई इट, दिस इज हाउ यू राइट इट, दिस इज हाउ यू शुड सी इट और कनेक्ट विद इट। अब बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स, दीज आर ऑल द जजमेंट्स दैट यू हैव and already given in one document, ठीक है, तो दिस इज योर। अब इसी तरीके से सोशल जस्टिस देखो, अगेन वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, देखो वल्नरेबल सेक्शंस क्या आता है, रैशनल बिहाइंड क्या है, डेटा, मेजर चैलेंजेस इन वेलफेयर स्कीम्स इन इंडिया, ये चैलेंजेस है, ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, मॉनिटरिंग स्टेज है, क्राइसिस मैनेजमेंट स्टेज है, वे फॉरवर्ड क्या होगा, प्लानिंग स्टेज में क्या वे फॉरवर्ड होगा, इम्प्लीमेंटेशन, उसका भी अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग की है सब पॉइंट्स में कि एक एक पॉइंट शुड मेक सेंस टू वट एवर इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसको इस तरीके से किया हुआ है यहाँ पे। इट हैज बीन डन विद सच प्रिसिशन। विमेन, क्या डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, दिस इज द इंटायर डेटा सेट फॉर दिस। मेजर इश्यूज क्या है, सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, अनपेड केयर बर्डन लीडिंग टू टाइम पॉवर्टी, दिस इज द कीवर्ड, टाइम पॉवर्टी। इफ यू राइट दैट, instantly the examiner will be like, what is this? Okay, they'll read triple burden of drudgery, then steps taken. Is tarike se you have this entire document curated, you have data sets like that you can simplify and use in your answers, again data that you can directly reproduce in your answers, all right, and everything is linked to the relevant micro theme, okay। अब जैसे मैंने कहा था कि अपडेटेड वर्जन्स जो हैं उसमें सब जगह पूरा का पूरा डेटा चेंज्ड है, ठीक है, it's more organized, everything connects to what is happening and what is relevant for the past year, and all the new cases, all the case laws, all the new information, data sets, और कोई अलग ऐसी current affair की information है that has also been added, ठीक है, everything curated here, right? This is a diagram which you can directly reproduce in your exam,
और देखते हैं, shown you economics, I'll show you ancient medieval also. This is the X factor note for ancient and medieval. इससे प्रीलिम्स में भी क्योंकि एंशियंट मेडिवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दिस टॉपिक बिकम्स, हरप्पन कल्चर से क्वेश्चंस आ चुके हैं, किस तरीके से इसको पढ़ना है, एवरीथिंग इन अ टैबुलर फॉर्म, सो दैट एवरीथिंग दैट यू सी आपको एक स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रोबेबली ड्रॉ इन योर आंसर्स टू फेच एक्स्ट्रा मार्क. बात यहाँ पे 20 मार्क्स 30 मार्क्स इंक्रीज करने की हो रही है, ठीक है. कॉन्टेंट कितना, रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड, ओल्डेस्ट चैनल लीडिंग टू सबरमती रिवर फॉर शिप मूवमेंट, इस तरीके की जो डेटा सेट्स है ना इसमें जो दिया हुआ है, दैट्स वेरी वेल क्यूरेटेड. मतलब जो भी एक स्टैंडर्ड रिसोर्सेस में फ्लफ होता है जो कि आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसको क्यूरेट करने में बहुत टाइम लगता है. दैट टाइम वो जो वेस्ट होता है ना, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड हियर कंप्लीटली. इन फैक्ट my point being here that your notes are generally scattered in a different directions, right? X factor is something जहाँ पे हर एक चीज एक structure से, I've already shown you the diagrams inside it, the codes inside it, the data sets, the keywords, the information, the points that you need to write an answer that can fetch you answers that actually get you to the 450 plus markers. वो ये है, ठीक है. Nothing apart from that. Comprehensive and consolidation of static, ठीक है. मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया, यहाँ पे पूरी चीजें एग्जैक्टली किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है वो दिखा दिया. दिस इज द स्कैन कोड, इसको स्कैन करो एंड डाउनलोड द एक्स फैक्टर राइट नाउ. सी इट फॉर योर सेल्फ, लाइक आई मेंशन दैट डेटा, बैक इट अप, चेक इट. ऑलराइट, तुम्हारा जो अभी करंट कंटेंट है अगर बहुत स्कैटर्ड है देन देखो कि इससे क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट. ट्राई राइटिंग एन आंसर बेस्ड ऑन दिस. दिस इज द बेस्ट टेस्ट. ट्राई राइटिंग अ PYQ बेस्ड ऑन दिस कंटेंट. ट्राई टू लाइक यू नो अपनी डायमेंशंस को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो इसके, कि देखो कि इस कंटेंट से क्या तुम्हारी सारे क्वेश्चंस की डिमांड्स या जो थीम्स है उनकी डिमांड्स फुलफिल हो रही है कि नहीं. एंड आई कैन गारंटी 100% दैट इट विल वर्क.